Hello student, today I am going to solve NIS 312 physics question paper of December 2021. This question paper consists of 30 questions. Maximum marks is 80 and passing marks is 24. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. 1. A ball of mass m strikes a rigid wall with speed u and rebounds back with the same speed. The impulse imparted to the ball by the wall is d माइनस 2mu। m द्रव्यमान की एक गेंद दृढ़ दीवार से u गति से टकराती है और टकराने के बाद उसी गति से वापस आती है। दीवार के द्वारा गेंद को दिया गया आवेग है d माइनस 2mu। 2. A crane lifts a mass of 100 kg to a height of 10 meter in 20 seconds. The power of the crane is take g is equal to 10 ms my power minus 2 d 500 w। एक क्रेन 100 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर 20 सेकेंड में ऊपर ले जाती है। क्रेन की शक्ति है कीजिए g बराबर 10 ms पावर माइनस 2 d 500 w। 3. A Carnot engine is working between steam point and ice point. Its efficiency will be C 26.8%। एक कार्नो इंजन वाष्प बिंदु और हिम बिंदु के बीच कार्य करता है। इंजन की दक्षता होगी C 26.8%। 4. Which of the following processes is correct for a given PV diagram? C. Isobaric process। दिए गए PV आरेख के लिए कौन सा उपक्रम सही है? C. समदाबी प्रक्रम। 5. Sound waves travel fastest in A. Solids। ध्वनि की तरंगें कौन से माध्यम में सबसे तेज गति से संचरण करती हैं? A. ठोस। 6. Figure shows a sinusoidal wave at a given instant. Which point are in same phase? D. C. E। किसी नियत समय पर एक ज्वायक्रिय तरंग को चित्र में दर्शाया गया है। वे कौन से दो बिंदु हैं जो एक ही कला में हैं? D. C. E। 7. An optically active substance A rotates the plane of polarized light। एक प्रकाशीय पदार्थ A ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है। 8. In nuclear reactions there is a conservation of D mass energy and momentum। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षण होता है D द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग का। 9. Which of the following spectral series falls within visible region of electromagnetic radiation? B. बाल्मर सीरीज। नीचे दिए हुए में से कौन सी स्पेक्ट्रल श्रेणी विद्युत चुंबकीय विकिरणों के दृश्य भाग के अंतर्गत आती है? B. बाल्मर श्रेणी। 10. The refractive index of a glass is 1.5 for light waves of lambda is equal to 6000 Armstrong in vacuum. Its wavelength in glass is B. 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। निर्वात में लैम्डा बराबर 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग प्रकाश की किरणों के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में इसकी तरंग दैर्ध्य का मान है B 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 11. Define A coefficient of static friction and B coefficient of kinetic friction। A स्थैतिक घर्षण गुणांक और B गतिज घर्षण गुणांक की परिभाषा दीजिए। A. The coefficient of static friction is the ratio of the maximum static friction force Fs between the surfaces in contact before movement commences to the normal force Fn mu s is equal to Fs by Fn। B. The coefficient of kinetic friction is the ratio of the kinetic friction force Fk of contacting surfaces to the normal force Fn mu k is equal to Fk by Fn। A. स्थैतिक घर्षण का गुणांक गति शुरू होने से पहले संपर्क में सतहों के बीच अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल Fs का अनुपात है जो सामान्य बल Fn से शुरू होता है। म्यू s इक्वल टू Fs बाई Fn। B. गतिज घर्षण का गुणांक संपर्क सतहों के गतिज घर्षण बल Fk का सामान्य बल Fn से अनुपात है। म्यू k इक्वल टू Fk बाई Fn। 12. A block of mass m is held on a rough inclined surface of inclination theta. So in a diagram various forces acting on the block। m द्रव्यमान का एक गुटका थीटा आंती के खुरदरे तल पर रखा हुआ है। गुटके पर प्रभावी विभिन्न बलों को चित्र द्वारा दर्शाइए।
13. Draw a schematic diagram of hydraulic jack for raising automobiles to the desired height. मोटर गाड़ियों को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाने के लिए हाइड्रोलिक जैक का एक समुचित चित्र बनाइए। 14. State zeroth law of thermodynamics. How many joules of work is equivalent to 1 calorie of heat? ऊष्मा गतिकी के शून्य कोटि नियम का कथन लिखिए। ऊष्मा की 1 कैलोरी कार्य के कितने जूल के बराबर होती है? Statement of zeroth law of thermodynamics. If two bodies are system A and B are separately in thermal equilibrium with a third body C, then A and B are in thermal equilibrium with each other. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। ऊष्मागतिकी के जीरोथ नियम का कथन। यदि दो निकाय या निकाय ए और बी तीसरे पिंड सी के साथ अलग अलग तापीय संतुलन में हैं तो ए और बी एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 15. Draw an indicator diagram for a thermodynamic system when it expands isothermally from volume V1 to V2 at pressure P1 and P2 respectively. ऊष्मागतिकी निकाय के लिए एक सूचक आरेख बनाइए जबकि दाब P1 और P2 पर क्रमशः आयतन V1 और V2 समतापी अवस्था में प्रसार के दौरान होता है। 16. State two reasons which were pointed out by Laplace for his correction to the formula for velocity of sound in air given by Newton. उन दो कारणों को लिखिए जिन्हें ध्यान में रखकर लाप्लास को वायु में ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन का सूत्र संशोधित करना पड़ा। Reasons for Laplace correction. 1. Air is a bad conductor of heat. 2. Compressions and rarefactions caused by sound are too rapid to permit heat to flow out during compression and flow in during rarefaction. लाप्लास के सुधार के कारण। 1. वायु ऊष्मा की कुचालक है। 2. ध्वनि के कारण होने वाले कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बहुत तेज होते हैं जिससे कंप्रेशन के दौरान हीट को फ्लो आउट और रेयरफैक्शन के दौरान फ्लो इन करने की अनुमति मिलती है। 17. So that for every 1 degree C rise in temperature, the velocity of sound in air increases by 0.61 ms power minus 1. यह दर्शाइए कि प्रति 1 डिग्री C ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग 0.61 ms पावर माइनस 1 बढ़ जाता है। 18. Draw a graph showing the variation of resistivity of a semiconductor with temperature. ताप के साथ अर्धचालक की प्रतिरोधकता के परिवर्तन को दर्शाने के लिए एक ग्राफ बनाइए। 19. What are main 4 observations from the experimental study of photoelectric effect? प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन से कौन से 4 प्रमुख प्रेक्षण प्राप्त होते हैं? 1. The maximum velocity of photoelectrons increases with frequency of incident light and depends on the nature of emitter material. 2. The maximum velocity of photoelectrons does not depend on the intensity of incident light. 3. For every material there exists a threshold frequency below which no photoelectrons are emitted. 4. For a particular frequency, the number of photoelectrons emitted per unit area of the emitting surface is proportional to the intensity of the incident light. 1. फोटोइलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ बढ़ता है और उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। 2. फोटोइलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। 3. प्रत्येक सामग्री के लिए एक थ्रेशोल्ड आवृत्ति मौजूद होती है जिसके नीचे कोई फोटोइलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। 4. किसी विशेष आवृत्ति के लिए उत्सर्जक सतह के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। 20. State Newton's first law of motion. Define inertia. Which physical quantity is a measure of the inertia of a body? Is it correct to say that a body always moves in the direction of external force acting on it? Give reasons thereof. न्यूटन के प्रथम गति नियम को लिखिए। जड़त्व की परिभाषा दीजिए। कौन सी भौतिक राशि किसी पिंड के जड़त्व के माप के लिए उपयोग की जाती है? क्या यह कहना सही है कि कोई वस्तु हमेशा उस पर कार्य कर रहे बाह्य बल की दिशा में चलती है? इसका कारण लिखिए। स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन.
A body continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by a net external force. 2. The property of an object by which it resists a change in its states of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia. 3. Mass of a body is a measure of inertia. 4. No, always not true. The statement is only true for a body which was at rest before the application of force. न्यूटन के गति के पहले नियम का कथन। कोई पिंड तब तक आराम की स्थिति में या एक समान गति की स्थिति में एक सीधी रेखा में बना रहता है जब तक कि उस पर एक बाहरी बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। 2. किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह एक सीधी रेखा में अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। पिंड का द्रव्यमान जड़त्व का एक उपाय है। नहीं, हमेशा सत्य नहीं। कथन केवल उस पिंड के लिए सही है जो बल लगाने से पहले आराम कर रहा था। 21. A body of mass 2 kg is at height of 10 meter above the ground. By applying work energy principle, A. Calculate speed of the ball at a height of 6 meter from the ground when it falls freely from top. B. Calculate speed of the ball when it reaches the ground after free fall from a height of 10 meter. C. How much work is done by gravitational force in bringing the ball at a height of 10 meter from the ground. D. State whether the work done in C will be positive or negative. Take G is equal to 10 ms power minus 2. 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है। कार्य ऊर्जा सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ए. जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की चाल की गणना कीजिए जब वह 10 मीटर से मुक्त रूप से गिरता है। बी. 10 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरकर जमीन पर पहुंचने पर पिंड की चाल की गणना कीजिए। सी. गुरुत्वीय बल द्वारा जमीन को 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। डी. यह बतलाइए कि सी में किया गया कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक। जी इक्वल टू 10 ms-2 का मान लीजिए। ए. वर्क इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 80J। वर्क इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 80। v स्क्वायर इज इक्वल टू 80 इंटू 2 बाई m इज इक्वल टू 80 इंटू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 80। v इज इक्वल टू रूट अंडर 80 इज इक्वल टू 8.9 ms पावर माइनस 1। b. वर्क इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 200J। वर्क इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 200। v स्क्वायर इज इक्वल टू 200। v इज इक्वल टू रूट अंडर 200 इज इक्वल टू 14.1 ms पावर माइनस 1। सी. वर्क इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 200J। डी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अप द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज निगेटिव। डी. जब वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। 22. Based on Bernoulli's theorem, describe the working of a flow meter to measure rate of flow of liquid through pipes. Draw a diagram. बर्नौली सिद्धांत पर आधारित प्रवाह मापी की कार्यविधि के बारे में लिखिए जिससे नली में बहते हुए द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका एक चित्र भी बनाइए। Working of flow meter. It is device used to measure the rate of flow of liquid through pipes. The device is inserted in the flow pipe as shown in the figure. It consists of a manometer whose two limbs are connected to a tube having two different cross-section areas, say A1 and A2, 8A and B respectively. Suppose the main pipe is horizontal at a height h above the ground, then applying Bernoulli's theorem for the steady flow of liquid through the venturimeter 8A and B, we can write total energy 8A is equal to total energy 8B, half mv1 square plus mgh plus mp1 by d is equal to half mv2 square plus mgh plus mp2 by d. On rearranging terms, we can write p1 minus p2 is equal to d by 2, v2 square minus v1 square is equal to v1 square by 2, v2 by v1 square minus 1. It shows that point of higher velocities are the points of lower pressure. दिस इज़ कॉल्ड वेंचुरीज प्रिंसिपल। फ्लो मीटर का कार्य। यह पाइप के माध्यम से तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। डिवाइस को फ्लो पाइप में डाला गया है जिसके चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक मैनोमीटर होता है जिसके दो अंग एक ट्यूब से जुड़े होते हैं जिसमें दो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र होते हैं जैसे A1 और A2 क्रमशः A और B पर।
मान लीजिए कि मुख्य पाइप जमीन से h ऊंचाई पर क्षैतिज है, फिर A और B पर वेंचुरीमीटर के माध्यम से तरल के स्थिर प्रभाव के लिए बर्नौली के प्रमेय को लागू करते हुए हम लिख सकते हैं A पर कुल ऊर्जा इक्वल टू B पर कुल ऊर्जा हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh प्लस mp1/d इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh प्लस mp2/d। शर्तों को पुनर्व्यवस्थित करने पर हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 बराबर d/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 2 v2 बाई v1 स्क्वायर माइनस 1। यह दर्शाता है कि उच्च वेग के बिंदु निम्न दबाव के बिंदु हैं। इसे वेंचुरी का सिद्धांत कहते हैं। और अथवा on the basis of Stokes' law explain A. Why a soldier opens his parachute close to the ground when he jumps from a flying airplane. B. Why raindrop reaching the earth do not have very high kinetic energy. स्टोक नियम के आधार पर यह समझाइए कि A. क्यों सैनिक जमीन के निकट ही अपना पैराशूट खोलता है जब वह उड़ते हुए जहाज से कूदता है। B. धरती पर पहुंचने वाली वर्षा की बूंदों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक क्यों नहीं होती है। A. After jumping from the airplane, the downward acceleration of the person goes on decreasing due to the viscous force in air till he attains a terminal velocity. He then opens his parachute to land safely. हवाई जहाज से कूदने के बाद व्यक्ति का अधोमुखी त्वरण हवा में श्यान बल के कारण तब तक कम हो जाता है जब तक कि वह अंतिम वेग प्राप्त नहीं कर लेता। वह सुरक्षित रूप से उतरने के लिए अपना पैराशूट खोलता है। B. When raindrops fall under gravity, their motion is opposed by the viscous drag in air. When viscous force become equal to the force of gravity, the drop attains a terminal velocity. That is why raindrops reaching the earth do not have very high kinetic energy. B. जब बारिश की बूंदें गुरुत्वाकर्षण के तहत गिरती हैं तो हवा में श्यान खिंचाव उनकी गति का विरोध करता है। जब श्यान बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है तो बूंद एक टर्मिनल वेग प्राप्त कर लेती है। इसलिए वर्षा की बूंदों की पृथ्वी पहुंचने में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा नहीं होती है। 23. Two resistance R1 and R2 are connected with a battery of V volt. Compute the net resistance when they are connected first, A in series and then B in parallel. Draw circuit diagram for each. दो प्रतिरोधकों R1 और R2 को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोधक का मान ज्ञात कीजिए जबकि इन दो प्रतिरोधकों को क्रमशः A पहले श्रेणी संयोजन में और B फिर पार्श्व श्रेणी में जोड़ा गया है। इसमें से प्रत्येक का परिपथ बनाइए। सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी संयोजन V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 V इक्वल टू IR इक्वल टू I ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज R इक्वल टू R1 प्लस R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन पार्श्व श्रेणी I इक्वल टू I1 प्लस I2 V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 1 by R इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2। 24. Derive an expression for the drift velocity of conduction electrons when electric field is applied. विद्युत क्षेत्र के लगाए जाने पर चालन इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। Let us now obtain an expression for the drift velocity of conduction electrons. Let E and M be the charge and mass respectively of an electron. If E is the electric field, the force on the electron is EE. Hence, acceleration experienced by the electron is given by A is equal to EE by M. If tau is the average time between collisions, we can write the expression for velocity of drifting electrons in terms of electric field as Vd is equal to EE by M tau. माना E और M क्रमशः इलेक्ट्रॉन का आवेश या द्रव्यमान है और E विद्युत क्षेत्र है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल EE है अतः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण होगा A इक्वल टू EE बाई M। यदि संगठनों के बीच का औसतन समय टाउ हो तो Vd इक्वल टू EE बाई M टाउ। 25. State de Broglie hypothesis. Derive an expression for the de Broglie wavelength of an elementary particles of mass m and charge q and moving with a velocity v after being accelerated through a potential difference v. डी ब्रॉगली की परिकल्पना को लिखिए। एक मूल कण जिसका द्रव्यमान m आवेश q भी गति से चाल्यमान है जब उसे v विभवांतर से त्वरित किया जाता है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। As per de Broglie hypothesis, all matter has both particle and wave nature. De Broglie wavelength defined the wave nature of a
particle as lambda is equal to h by p, where p is equal to momentum of the particle, lambda is equal to h by mv, where m is equal to mass of the particle, v is equal to velocity of the particle. डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार सभी पदार्थों में कण और तरंग दोनों प्रकृति होती है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य ने एक कण की तरंग प्रकृति को परिभाषित किया है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, जहाँ पी इज इक्वल टू कण का संवेग, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी, जहाँ एम इज इक्वल टू कण का द्रव्यमान, भी इज इक्वल टू कण का वेग। के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू क्यू भी, के ई इज इक्वल टू पी ई, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू भी इज इक्वल टू रूट अंडर टू क्यू भी बाई एम, पी इज इक्वल टू एम भी इज इक्वल टू एम इंटू रूट अंडर टू क्यू भी बाई एम इज इक्वल टू रूट अंडर टू क्यू एम भी। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एच बाई रूट अंडर टू क्यू एम भी। 26A. Show three basic components of a transistor with the help of a diagram. B. Draw symbols of NPN and PNP transistors. C. Why does the arrowhead point outward in case of NPN transistor while inward in case of PNP transistor? A. चित्र की सहायता से ट्रांजिस्टर के तीन मुख्य अवयवों को दिखलाइए। B. NPN और PNP ट्रांजिस्टरों के लिए सांकेतिक निरूपण को बनाइए। C. NPN ट्रांजिस्टर में बाणाग्र बाहर की ओर जबकि PNP ट्रांजिस्टर में अंदर की ओर क्यों होता है? बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिस्टर, सिंबल ऑफ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। C. Significance of arrowheads. In a NPN transistor, the emitter current is due to flow of electrons from emitter to base and the conventional current flow base to emitter, and hence the arrowhead point out from the base. In case of PNP transistor, the emitter current comprises flow of holes from emitter to base. Thus, the conventional current flow emitter to base. वाणाग्र परंपरागत धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करता है। आप शायद NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उत्सर्जक से आधार की ओर होता है, अतः परंपरागत धारा प्रवाह आधार से उत्सर्जक की ओर माना जाता है। इसी कारण से वाणाग्र आधार से बाहर की ओर है। PNP ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा होलों के उत्सर्जक से आधार की ओर प्रवाह के कारण होती है। इसी प्रकार परंपरागत धारा उत्सर्जक से आधार की ओर प्रभावित होती है। 27. What are electric field lines? State their three properties. Draw electric field lines for a single positive point charge and B electric dipole. विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उनके तीन गुणधर्मों के लिखिए। ए धनात्मक एकल बिंदु आवेश और बी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। Electric field lines. The electric field lines gives us an idea of magnitude and direction of electric field. The number of field line passing through a unit area of a plane placed perpendicular to the direction of the field is proportional to the strength of field. विद्युत क्षेत्र रेखाओं का रेखा चित्र हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं परिमाण का अनुमान कराता है। क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे गए एक समतल के इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्षेत्र की शक्ति के समानुपाती होती है। Properties of electric field lines. 1. Start from a positive charge outward in all directions and terminate at infinity. For a negative charge, start from infinity and terminate on negative charge. 2. For a dipole field line, start from the positive charge and terminate on the negative charge. 3. A tangent at any point on field line gives the direction of electric field at the point. 4. The number of field lines passing through a unit area of a surface drawn perpendicular to the field line is proportional to the field strength on this surface. 5. Two field lines never cross each other. 1. एक द्विध्रुव में क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। 2. क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। 3. क्षेत्र रेखाओं के लंबवत तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या उस तल पर क्षेत्र की शक्ति के समानुपाती होती हैं। 4. दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल। 28A. Explain the phenomena of polarization of light. Draw a schematic arrangement of apparatus used for it. B. How unpolarized light is plane polarized by reflection from a transparent material. Show it by drawing a ray diagram. C. Derive an expression for Brewster's law. A. प्रकाश के ध्रुवीकरण की परिघटना को समझाइए, इसके लिए उपकरण का व्यवस्थात्मक चित्र बनाइए। बी. किसी पारदर्शी पदार्थ से परिवर्तित हो जाने पर अध्रुवित प्रकाश किस प्रकार समतल ध्रुवित होता है, इसके लिए एक किरण आरेख भी बनाइए। सी. ब्रूस्टर्स नियम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
Polarization of light is the phenomena of restricting the vibration of light in a particular direction. प्रकाश का ध्रुवण एक विशेष दिशा में प्रकाश के कंपन को सीमित करने की परिघटना है. When an unpolarized light fall on a glass, water or any other transparent material, the reflected light is in general partially plane polarized. When the light is incident at polarized angle, the polarization is complete. At this angle, the reflected and transmitted ray are at right angle to each other. C. Brewster's law. Mu is equal to sin ip by sin r is equal to sin ip by sin 90 minus ip is equal to sin ip by cos ip is equal to tan ip. 29. Sir C.V. Raman was awarded Nobel Prize in Physics in 1930 for the discovery of Raman effect. A. State Raman effect with its simple theoretical explanation. B. Calculate refractive index of an equilateral prism if the angle of minimum deviation is equal to the angle of prism. सर C.V. रमन को 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव की खोज के लिए प्रदान किया गया था. ए. रमन प्रभाव के बारे में बतलाइए और साथ में इसकी सरल सैद्धांतिक व्याख्या कीजिए. बी. किसी समबाहु प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का परिकलन कीजिए जब न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण एक दूसरे के बराबर हों. रमन इफेक्ट. When light radiation undergoes scattering from a transparent substance, then the frequency of scatter radiation may be greater or less than the frequency of incident radiation. This phenomena is known as Raman effect. Explanation of Raman effect. When light radiation interact with a substance, three possibilities may arise. In the first possibility, the light radiation interacting with the substance does not undergo any change of energy, hence its frequency remain unchanged. In the second possibility, the light radiation may impart some of its energy to the substance. As a result, the energy of the light radiation decreases. This leads to decrease in the frequency of the scatter radiation. In third possibility, the incident radiation may interact with the substance which is already in the excited state. In the process, the radiation gains energy, resulting into increase in this frequency. जब प्रकाश विकर्णने का किसी पारदर्शी पदार्थ से प्रकीर्णन होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश विकर्णों की आवृत्ति आपतित विकर्णों की अपेक्षा कम भी हो सकती है और अधिक भी. यह परिघटना रमन प्रभाव कहलाती है. रमन प्रभाव की व्याख्या. जब प्रकाश विकर्ण किसी पदार्थ से अन्योन्य क्रिया करते हैं तो तीन संभावनाएं हो सकती हैं. पहली संभावना यह है कि पदार्थ से अन्योन्य क्रिया करने वाले विकर्णों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः इसकी आवर्ती अपवर्तित रहती है. दूसरी संभावना यह है कि प्रकाश विकर्ण अपनी कुछ ऊर्जा पदार्थ को दे दे, परिणाम स्वरूप प्रकाश विकर्णों की ऊर्जा कुछ कम हो जाएगी. तीसरी संभावना यह है कि आपतित विकर्ण पदार्थ कणों से उस अवस्था में अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं जब वे पहले से ही उपदित हैं. इस प्रक्रम में विकर्णों की ऊर्जा और आवृत्ति बढ़ जाएगी. हेयर ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, लैम्डा एम इज इक्वल टू 60 डिग्री, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस लैम्डा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री by 2 sin 60 degree by 2 is equal to sin 60 degree by sin 30 degree is equal to root 3 by 2 by 1 by 2 is equal to root 3. 30A. Classifies solids as conductors, semiconductors and insulators. On the basis of energy bands, draw one diagram each for their energy bands. B. Write down main two differences between intrinsic and extrinsic semiconductors. ए. ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालकों व अर्धचालकों या विद्युत विरोधियों के वर्गीकरण के बारे में लिखिए. प्रत्येक के लिए एक ऊर्जा बैंड का चित्र बनाइए. बी. नैंज अर्धचालकों या ब्राह अर्धचालकों के बीच दो मुख्य अंतर लिखिए. इफ इन अ सॉलिड एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन द कंडक्शन बैंड Cb एंड वैलेंस बैंड Vb ओवरलैप एज इट हैपन इन केस ऑफ मेटल्स, द मटेरियल इज कंडक्टर. इफ एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन द कंडक्शन बैंड इज completely empty, valence band is completely full and there is a small band gap delta E less equal to 3 eV between the highest level of valence band and lowest level of conduction band, called a forbidden energy gap. The solid is a semiconductor. If at equilibrium separation the Cv is completely empty, Vv is completely filled and there is a large band gap delta E greater than 3 eV, the solid is an insulator. साम्य प्राथक्य पर यदि किसी पदार्थ के चालन बैंड Cv एवं संयोजकता बैंड Vb अध्यारोपण करे जैसा कि धातुओं के प्रकरण में होता है तो पदार्थ चालक होता है. यदि साम्य प्राथक्य पर चालन बैंड पूरी तरह खाली हो, संयोजकता बैंड पूरी तरह भरा हो, संयोजकता बैंड के उच्चतम एवं
चालन बैंड के निम्नतम स्तर के बीच लघु स्तर के बैंड अंतराल हों जिसे वर्जित ऊर्जा गैप कहते हैं तो पदार्थ अर्धचालक होता है। यदि साम्य पृथक पर Cb पूर्णतः खाली हो, Vb पूर्णतः भरा हो और उनके बीच विशाल बैंड गैप हो तो पदार्थ विद्युत रोधी होता है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक 1 प्योर सेमीकंडक्टर, डोप्ड और इम्प्योर 2 Ne is equal to NH, Ne is not equal to NH 3 low conductivity at room temperature, higher conductivity at room temperature 4 conductivity depend on temperature, conductivity does not depend significantly on temperature। नैज अर्धचालक एक शुद्ध अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक एक अशुद्ध 2 Ne is equal to NH, Ne is not equal to NH 3 कमरे के तापमान पर कम चालकता, कमरे के तापमान पर उच्च चालकता 4 चालकता तापमान पर निर्भर करती है, चालकता तापमान पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर नहीं करती है। और ए एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ड्रॉ डायग्राम फॉर इट, हेंस डिफाइन डिप्लेशन रीजन एंड वेरियर पोटेंशियल। बी ड्रॉ IV कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ जेनर डायोड, व्हाट इज इट मेन एप्लीकेशन। ए पीएन संधि की संरचना को समझाइए, इसके लिए एक चित्र बनाइए, अवयव क्षेत्र और विभव प्राचीर की परिभाषा दीजिए। बी जेनर डायोड के IV अभिलक्षणों के लिए एक वक्रचित्र बनाइए, इसका एक मुख्य अनुप्रयोग क्या है। To form a PN junction, the most convenient way is to introduce donor impurities on one side and acceptor impurities into the other side of a single semiconductor crystal। PN संधि के बनने की सबसे सरल विधि यह है कि किसी अर्धचालक क्रिस्टल के एक भाग में दाता अशुद्धि तथा दूसरे भाग में ग्राही अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाए। डिप्लेशन रीजन अवयव क्षेत्र, the region containing unneutralized acceptor and donor ions across a PN junction is called depletion region। एक PN संधि के आर पार अप्रभावित स्वीकार्यता और दाता आयन वाले क्षेत्र को अवयव क्षेत्र कहा जाता है। पोटेंशियल बैरियर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एक्सेप्टर एंड डोनर आयन इज कॉल्ड द बैरियर। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। विभव प्राचीर, स्वीकार्यता और दाता आयनों के बीच विद्युत क्षेत्रों को अवरोध कहा जाता है। एक तरफ से दूसरी तरफ की क्षमता के अंतर को संभावित अवरोध कहा जाता है। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड, जेनर डायोड के IV अभिलक्षण। मेन एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजर, जेनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजर का मुख्य अनुप्रयोग है।